So today's topic is death. What is death? What are the types of death? And what are the causes, mode, manner, etc. etc. बहुत सारी चीजें हैं death की क्या होती हैं. So death, the study of death is known as thanatology, and it means the cessation of all physiological process or complete and permanent cessation of circulation and respiration is known as death. So it is process rather than an event. So clinical death and biological death. Clinical death is nowadays basically we consider brain death as a death, and there is a cellular death also, which is also known as biological death. So according to Registration of Birth and Death Act Section 2B defines death as permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place. आफ्टर बर्थ कभी भी आपका जब सारी एविडेंस ऑफ लाइफ सब खत्म हो जाती है उसको हम डेथ मान लेते हैं. सो देर इज टू टाइप्स ऑफ डेथ. वन इज सोमैटिक डेथ और सिस्टमिक डेथ, एंड अनदर वन इज मॉलिक्यूलर डेथ. सो सोमैटिक डेथ, it is a complete and irreversible stoppage of the circulation, respiration and brain function, which is known as Bishop's tripod of life, that is your heart, lung and brain. ठीक है. So the complete and irreversible stoppage of the circulation, respiration and brain, but there is no legal definition of that. लीगल डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ जो अपन क्लिनिकल उसमें मानते हैं जहाँ अपना हार्ट, रेस्पिरेशन और ब्रेन तीनों चीजें काम करना बंद कर दे, दैट मीन्स डेथ अकर. And it is important in resuscitation and organ transplantation as long as circulation of oxygenated blood is maintained to brain stem, life exists. So nowadays brain death is considered to be a death. अगर brain death अपन डिक्लेयर कर दिया that means death occur. It is not like that कि हार्ट रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है तो अपन उसको डेथ डिक्लेयर कर देते. नो, टिल तक अपने को साइन मिल रहे हैं ब्रेन फंक्शन कर रहा है तब तक हम उसको डिक्लेयर नहीं करते. So whether the person is alive or dead can only be tested by the withdrawal of the artificial maintenance. A person who cannot survive upon withdrawal of artificial maintenance is dead. So somebody, if he is in ICU or in coma etc etc, ventilator पे है, सब कुछ है, till what time will give that support, वो हमारे को जज करना है. आप जाते हैं उसका ग्लासगो कोमा स्केल वगैरह देखते हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज देखते हैं, एंड वन फाइन डे यू टेक डिसीजन कि नहीं अब इसका आर्टिफिशियल अपन को बंद करके देखना चाहिए वेदर द फंक्शन जो उसके बाकी के फंक्शन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं. तो ऑन दैट डे अगर हम उसका विड्रॉल करते हैं जो भी आर्टिफिशियल मेंटेनेंस के लिए अपन दे रहे हैं, एंड आफ्टर दैट इफ देर इज जो आपका पैनल होता है मॉनिटर है उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, पल्स नहीं आ रही है, बीपी नहीं रिकॉर्ड हो रहा, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, आप उसका आई देखते हैं प्यूपल डायलेट नहीं हो रही है, फिक्स्ड है, देन वी डिक्लेयर दैट पर्सन इज डेड. This is somatic death. Now molecular death. It means the death of the cell and tissue individually, which take place usually 1 to 2 hours after the stoppage of the vital functions. So individual cells will live on their residual oxygen for a variable time after the circulation has stopped, depending on the metabolic activity of the cell. और जो ये पीरियड होता है that is important for your organ transplantation. हम कहते हैं ना कि आप आईज इतने टाइम तक निकाल सकते हैं, हार्ट इतने टाइम तक निकाल सकते हैं हार्ट अपनी बॉडी से, दैट टाइम इज योर मॉलिक्यूलर डेथ टाइम. जो आपने डिक्लेयर किया उसके बाद तक कितने टाइम में मॉलिक्यूलर डेथ होगी उस बीच का टाइम ही आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं. ओके. So nervous tissues die rapidly. The vital center of the brain is about 5 minutes, but the muscles live up to more than 1 to 2 hours, and anoxia settles. Then comes your brain death. What is brain death? So historically, concept of death was that of heart and respiration death, but however have changed this
medically in favor of a new concept, that is brain death, and that is irreversible loss of cerebral function. So it's of three types: cortical or cerebral death, brainstem death, and whole brain death. तो ब्रेन को भी cerebral, brainstem and whole brain death तीन में डिवाइड कर दिया. Cortical death, which is also known as cerebral death, with an intact brainstem. तो brainstem तो अपना फंक्शन कर रहा है, but cerebral part dead हो चुका है. So this produces a vegetative state in which respiration continues, but there is total loss of power of perception by the senses. This state of deep coma can be produced by cerebral hypoxia, toxic condition, or widespread injury. This is cortical or cerebral death, where brainstem is functioning but cerebrum is not functioning. Then comes your brainstem death, where the cerebrum may be intact, though cut off functionally by the brainstem lesion. The loss of vital centers that control respiration and of the ascending reticular activating system that sustains consciousness cause the victim to be irreversibly comatose and incapable of spontaneous breathing. तो जो लोग वेंटिलेटर पे रहते हैं और सस्टेन करते रहते हैं वो ये होते हैं. ओके, उनमें उनकी खुद की ब्रीदिंग नहीं है, जबकि सेरेब्रल फंक्शन में ब्रीदिंग इंटैक्ट है लेकिन बाकी चीजें गई हुई. परसेप्शन और सेंसेस चले जाते हैं उसमें, इसमें ब्रीदिंग ही स्टॉप हो जाती है बट बाकी चीजें मेंटेन कर रहा है. So this can be produced by raised intracranial pressure, cerebral edema and intracranial hemorrhage. These are the causes of brainstem death. Whole brain death, जहाँ दोनों ही आपके cerebrum, brainstem तीनों पार्ट आपके ब्रेन के काम करना बंद करते हैं, that is known as whole brain death. I think क्या फंक्शन है, cerebrum क्या फंक्शन कर रहा है, cerebellum क्या फंक्शन कर रहा है, brainstem क्या फंक्शन कर रहा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. तो ये आप फिजियोलॉजी पूरी पढ़ के आए हो आई थिंक, है ना. इतना तो आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, व्हाट इज सेरेबेलम एंड व्हाट इज ऑफ ब्रेनस्टेम. ओके, उन्हीं को जज करना है आपको जब उसको डेथ डिक्लेयर कर रहे हो कि कौन सा फंक्शन किसका है और क्या कर रहा है. तो ब्रेनस्टेम डेथ है, सेरेब्रम डेथ है और क्या है. ठीक है. नाउ देयर इज वेरियस क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द ब्रेन डेथ. सम ऑफ देम आर फिलाडेल्फिया प्रोटोकॉल, मिनेसोटा क्राइटेरिया एंड हार्वर्ड क्राइटेरिया. तो इसमें जनरली हम हार्वर्ड क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं. ये आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा तो उस समय इसको डिस्कस करेंगे अपन क्या क्या होता है हार्वर्ड क्राइटेरिया में, अपन को क्या क्या चीजें देखनी है. ओके, नाउ आपने भी कभी परफॉर्मा देखा होगा अपना पोस्टमार्टम वगैरह का कुछ भी, तो मैं उस दिन भी बोला था देयर इज थ्री थिंग, दैट इज मोड ऑफ डेथ, cause of death and the manner of death. So what is difference between these? What is mode of death, what is cause of death and what is the manner of death? So first is the mode of death. So mode of death में only three types, that is coma, syncope और asphyxia. Coma क्यों होगा? Because of the loss of the function of brain. तो coma. Syncope, function of the heart, syncope. एंड एस्फिक्सिया दैट इज लंग. तो तीनों जो वाइटल सेंटर्स हैं, तीनों वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, उनके बेसिस पे ही मोड ऑफ डेथ डिक्लेयर होगी. दैट इज वेदर इट इज कोमा, व्हाट इज सिंकोप और एस्फिक्सिया. देयर इज नो फोर टाइप ऑफ मोड ऑफ डेथ. ओके, मोड ऑफ डेथ ओनली थ्री मोड्स ऑफ डेथ इज देयर. या तो वो कोमा से मरेगा, या वो सिंकोप से मरेगा, या एस्फिक्सिया से मरेगा. ठीक है. या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट. ठीक है. मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड इन द योर डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट. मींस योर कार्डियक फंक्शन एंड रेस्पिरेशन सिस्टम वर्ड, जिसको हम कभी भी एसेस नहीं कर सकते पहले क्या गया बाद में क्या गया. ठीक है. बट जब भी आप कोई पोस्टमार्टम करते हो जहाँ पे आपको ये तीनों चीजें अलग अलग मेंशन करनी होती है, व्हाट इज मोड ऑफ डेथ, व्हाट इज कॉज ऑफ डेथ एंड व्हाट इज मैनर ऑफ डेथ. फॉर लेमैन it is many of the time one and the same thing. उसको फर्क समझ में नहीं आएगा. But you are a doctor and you are writing a report, so you should know what is the difference between all these on three. So coma, that is the failure of the function of the brain and irreversible damage to its vital centers.
Cause is maybe raised intracranial pressure due to injuries to or disease to brain, that is meningitis. Poisons such as opioids and alcohol, metabolic disorders like uremia, etc. पोस्टमार्टम चेंजेस में जब आप करते हैं उसमें क्या दिखता है? एडिमा दिखता है एंड द कंजेशन ऑफ द ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन दिखती है. देन सिनकोप, that is death due to the failure of the heart function of the heart due to decreased flow of the blood to the brain and leading to the hypoxia of the brain. So ultimately हमें डिक्लेयर कब करना है? That is brain death. ठीक है, डेथ इज डिक्लेयर ओनली व्हेन द ब्रेन इज डेथ. ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट कि ब्रेन तो फंक्शन कर रहा है, आपका हार्ट रुक गया, रेस्पिरेशन रुक गया. फर्स्ट में आपने अभी देखा होगा कि पहले हम मानते थे कि हार्ट और रेस्पिरेशन बंद हुआ दैट मीन्स डेथ हो गई. नो, नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. टिल योर ब्रेन इज फंक्शनिंग यू आर अलाइव. ठीक है, यू कांट बी डिक्लेयर डेड. सो ब्रेन डेथ is the criteria for declaring a death. ठीक है, so due to heart disease, disease of the blood, hemorrhage, poisoning due to digitalis, aconite, potassium. So जब आप poisoning toxicology पढ़ोगे उसमें आप सब पढ़ोगे, what are cerebral poisons, what are cardiac poisons, what are asphyxiants. तो उसमें जो ये आएगा उसमें आ जाएगा कि कौन सा कहाँ एक्ट कर रहा है, ब्रेन पे क्या एक्ट कर रहा है, हार्ट पे क्या एक्ट कर रहा है, और एस्फिक्सिया दैट इज रेस्पिरेशन सिस्टम पे क्या एक्ट कर रहा है. So asphyxia is death due to failure of the respiratory system, and it may be due to lung disease like pneumonia, paralysis of the respiratory centers, opioid poisoning, and breathing of the irrespirable gases, जो भी like carbon monoxide, carbon dioxide. Traumatic asphyxia, postmortem findings तीनों में अलग अलग होंगी. साइनोसिस दिखेगा, पेटेचियल हेमरेजेस दिखेंगे, विसरल कंजेशन दिखेगा और इंजरी मार्क ऑन द नेक अगर ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है तो. So this is mode of death: coma, syncope and asphyxia. ठीक है. Now criteria to diagnose death, उसमें 3 बताए थे, जिसमें मेन कहा था कि हार्वर्ड we use. So Harvard criteria is, it is followed in majority of the countries and the basis of the diagnosis is as follows. जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लिनिकली, जब पेशेंट हमारे पास कोई आ रहा है, से ब्रॉड डेड पेशेंट आया, तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं. से पेशेंट इज अलाइव एंड इन योर वार्ड यू हैव टू डिक्लेयर दैट पेशेंट कि नहीं ही इज नो मोर. तो उनमें हमें क्या क्या देखना है. तो दैट दीज आर द क्राइटेरिया यू हैव टू लुक फॉर. सो नॉन रिसेप्टिव फॉर स्टिमुलाई एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स. तो आप उसको डीप पिंचिंग सब कुछ करके देखते हो, देयर इज नो रिस्पॉन्स, वन थिंग. नो मूवमेंट फॉर 1 hour और नो ब्रीदिंग, 1 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा और स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं है, उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं है. नो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग फॉर 3 minutes आफ्टर स्विचिंग ऑफ द आर्टिफिशियल मीन्स. से अगर वो कोई वेंटिलेटर वगैरह पे है उसने आप उसको बंद कर दिया एंड स्टिल 3 minutes कोई स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग उसकी अपीयर नहीं हो रही है, दैट मीन्स ही इज नॉट ब्रीदिंग. No reflexes and flat EEG. EEG से flat. EEG. What is EEG? Encephalogram. That is brain function. Okay. ECG नहीं है, ध्यान रखना. That is not ECG. जो हम जनरली करते हैं कि ECG लीड लगी हुई है, flat आ गई, that means that. नहीं. EEG. Flat EEG should be there because we have to consider brain death. ठीक है. So these are the criteria to declare a person dead. ठीक है, Howard's criteria. Now there is a term suspended animation or apparent death. Means the person is not dead but it appears to be in a state of death. See, it is a condition in which the vital function of the body, say heartbeat and respiration, are at such a low pitch that they cannot be detected by the routine method of the clinical examination. So the conditions are, किस कंडीशन में ऐसा होता है, इनवॉलेंट्री कंडीशन एंड वॉलेंट्री. वॉलेंट्री में जो आप साधु को बोलते हैं ना, साधना में चले गए जो बोलते हैं, दैट इज योगी जो करते हैं. इट इज प्रूवन फैक्ट कि वो उस स्टेज में चले जाते हैं कि वेयर वी कैन नॉट फील देयर हार्ट एंड पल्सेस, रेस्पिरेशन वगैरह हमें नहीं मिलता उसका, बट स्टिल दे आर लिविंग, मतलब डेड नहीं है. एंड इनवॉलेंट्री कंडीशन
drowned persons, newborn, after anesthesia, cerebral concussion, electrocution, heat stroke, mesmeric trance and prolonged illness. कभी आप देखते हो ना कि एकदम से इलेक्ट्रोक्यूशन में हार्ट बीट सब कुछ रुक जाता है, देन भी सीपीआर करते हैं, कुछ करता है, देन भी रिवाइव द पेशेंट. दैट इज द कंडीशन जहां पे ये हो रहा है. So drowned persons, newborn, after anesthesia, cerebral concussions, electrocution, heat stroke, mesmeric trance, prolonged illness. बहुत सारी और conditions भी होती हैं, but main जो है वो these are. Now the postmortem changes, phenomena change after death. This is another topic. ये बहुत lengthy topic है. ये this is आज नहीं इसको अपन cover करेंगे. That topic to be covered in separate classes. That is changes after death. So mode हो गए. Now comes your manner of death. What is manner of death? So manner is natural death and unnatural death. Natural death, cerebral thrombosis, subsequent infarction, cerebral embolism, meningitis, tumor of the brain. Natural means कोई natural disease है, उसको progress होते होते the person dies, that is natural death. Say old age is a natural death. ठीक है ना? पर्सन एजिंग हो गई, उसकी सारी चीजें लेवल पे चली गई एंड ही डाइड, दैट इज अ नेचुरल डेथ. व्हाट इज अननेचुरल डेथ? अननेचुरल डेथ में भी तीन चीजें, दैट इज एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल. पॉइजनिंग को भी हम एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल कब में किसी में भी डाल सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि पॉइजनिंग को अलग से करें, क्योंकि है तो वही. अगर पॉइजनिंग है, इट मे बी एक्सीडेंटल, इट मे बी होमिसाइडल, इट मे बी सुसाइडल, सुसाइडल. ओके, सो पॉइजनिंग को अलग से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. द अननेचुरल डेथ्स आर ओनली ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल. सो एक्सीडेंटल कोई भी डेथ है, आरटीए हुई, हेड इंजरी हुआ, कुछ भी हुआ. होमिसाइडल इफ समवन हर्ट्स यू, असॉल्ट हो रहा है, उसके बाद कोई भी किसी भी इंजरी से आपकी डेथ हो रही है, दैट इज अननेचुरल डेथ. सिमिलरली सुसाइडल, आप अगर सुसाइड कर रहे हो, चाहे वो फांसी लगा के करो, चाहे गोली मार के करो, कैसे भी करो, दैट इज अगेन योर सुसाइडल डेथ. सिमिलरली पॉइजनिंग, पॉइजनिंग को अलग मेंशन किया जरूर है, बट पॉइजनिंग में भी अगर आपने पॉइजन एक्सीडेंटली लिया है और उससे डेथ हो गई, दैट इज अननेचुरल. किसी ने आपको पॉइजन किया है, दैट इज होमिसाइडल पॉइजनिंग. और खुद खा गए, जान करके खा रहे हो, दैट इज सुसाइडल पॉइजनिंग. तो उसको उसी में इंक्लूड करके अननेचुरल डेथ्स आर ओनली ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, नाउ जो मैंने पहले भी बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड द मैनर ऑफ डेथ. सो द कॉज ऑफ डेथ इज द स्पेसिफिक इंजरी और डिजीज दैट लीड्स टू डेथ. जो भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, कोई डिजीज है, दैट इज कॉज. बट द मैनर इज द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ द इंजरी और डिजीज लीड टू दैट. मैनर क्या हुआ, मैनर क्या बताए थे? एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल. अननेचुरल में तीन ही है ना. दैट मीन्स हाउ द इंजरी और डिजीज लीड टू डेथ, दैट इज योर मैनर ऑफ डेथ. बट द कॉज ऑफ डेथ इज से कार्डियक पॉइजन. तो कार्डियक पॉइजन में कॉज क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट. ठीक है. अब दैट मे बी ड्यू टू एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल. तो मैनर इज डिफरेंट एंड द कॉज इज डिफरेंट. ओके, तो इन चीजों को इंटरमिंगल नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत बहुत पूछा जाता है इन फॉरेंसिक मेडिसिन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोड, कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ. बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द पोस्टमार्टम, आप जब पोस्टमार्टम करोगे, विच इज व्हाट वी कैन से इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ जूरिस्ट और अ मेडिको लीगल पर्सन, जो आपको करने ही पड़ेंगे. अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं तो एमबीबीएस करते हैं, आपके टाइम तक आता है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा. यू हैव टू परफॉर्म 2 to 3 years जो आपको रूरल सर्विसेज देनी पड़ेंगी. तो उन केसेस में आपको ये पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल वर्क करना ही पड़ेगा. दैट्स व्हाई इस सब्जेक्ट को प्री क्लिनिकल कर दिया गया है, इसको 2 साल तक एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि फील्ड में जाके आप ये परफॉर्म नहीं कर पाते हो. ना आप किसी को पोस्टमार्टम करना आता है, ना मेडिको लीगल रिपोर्ट्स बनानी आती है, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते. बट अब गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में तो हो ही गया है कि आपको रूरल सर्विस करनी है, अदरवाइज वो बॉन्ड भरवाते ही हैं आपसे. तो वो राजस्थान में भी होने वाला है, यहाँ हो जाएगा. आई डोंट थिंक कि हो गया होगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन
कॉज ऑफ डेथ एंड द मैनर ऑफ डेथ। और मोड ऑफ डेथ आई थिंक वो क्लियर हो गया, मोड क्या होगा। मोड में तो इधर ब्रेन, रेस्पिरेशन और हार्ट, तीनों में से जो भी जा रहा है, ऑन दैट बेसिस वेदर इट इज अ कोमा, सिनकोप और एस्फिक्सिया। ठीक है, दैट इज main. Now comes your indication of that. What are the indicators which leads to you have to declare that person a death? So indication of death is unconsciousness, loss of all reflexes, no reaction to the painful stimuli, muscular flaccidity, cessation of the heartbeat and the respiratory movements. फिर अपन आई खोल के देखते हैं तो आई में क्या क्या देखना है, दैट इज लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड राइट रिफ्लेक्सेस, mid dilated position of the pupil, irregular size and shape of the pupil, eyelids are usually closed incompletely, and tachynoia. Tachynoia is when the sclera remains exposed, two triangles of the discoloration appears at each side of the cornea, either brown or black. Means कभी भी डेड, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब कोई बंदा डेड होता है तो कोई आके उसकी आंखें बंद करता है क्योंकि आईज आर ऑलवेज पार्टली क्लोज मतलब पार्टली ओपन एंड पार्टली क्लोज, नॉट फुल्ली क्लोज। तो इन दैट केस टैकेनोइड डेवलप्स। व्हाट इज टैकेनोइड? जब अपनी आंखें पार्टली खुली होगी, दोनों कॉर्नियल एंगल्स हैं, दैट बिकम्स ईदर ब्राउन और ब्लैक, दैट इज टैकेनोइड व्हेन द आईज रिमेन्स पार्टली ओपन। ठीक है, so that develops, that is also a sign of death. So this is about death. So death is two types, that is somatic and molecular. Then now we consider brain death as a death. So brain death is again of three types, that is cerebral or cortical, brainstem and whole brain death. Then there is a mode of death, cause of death and the manner of death. ठीक है, देन देयर इज अ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया, व्हाट इज दैट, वो चीज आपको आनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट डेथ। आज एक चैप्टर और था, दैट इज ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस, बट आई डोंट थिंक कि मैं अब लूंगा उसको। ठीक है।